Men somehow have this feeling that the wife should be more dedicated to them. Please do not use mobile as a substitute to help your child pass the time. 2 से 7 साल के बच्चे में एक ब्रेन में मैक्सिमम डेवलपमेंट होती है। कंपटीशन में कुछ मत करो, ऑब्जर्व योर चाइल्ड, अपने बच्चे की नीड को समझो। Vandana Saxena with us. She is a visionary educationist with 30 years of experience both in spirituality and parenting. She has been bestowed with Youth Ideathon Innovative Principal Award and Search Impact Award by TERI. She will be receiving Dr. Kalam's Memorial Teaching Award as well. मैंने इमीडिएटली अपनी बेटी को बोला कि उसके सामने से बहुत सारे टॉयज हटा दो, एक दो, उसके साथ इनोवेट करने दो। ऑप्शंस देने से इस टाइम पे 2 to 7 की एज में इट लीड्स टू अ मैक्सिमम डेवलपमेंट ऑफ देयर ब्रेन कैपेसिटी. सो हाउ एज अ पेरेंट आई कैन डिसाइड कि कितने ऑप्शंस मैं एक टाइम पे उसको ऑफर करूं. Top priority is that the emotional bond between the parent and the child must remain good. We dearly want to spend time with our kids, but we don't have that time. How can we create that time? How is perfection and living soulfully different? क्या नेचर है बच्चे की? 2 to 7 इयर्स में बच्चे अपने सोलफुल सेल्फ में ही होते हैं। पेरेंट्स सोचते हैं कि हम बच्चों के फ्रेंड्स बन जाएंगे, लेकिन आप फ्रेंड नहीं बन सकते बच्चे के, आप फ्रेंडली पेरेंट बन सकते हैं। Namaste viewers, कैसे हैं आप सब? Welcome to another episode of The Med Show. And today we have Vandana Saxena with us. She is a visionary educationist with 30 years of experience both in spirituality and parenting. And as you know, our episodes are all about how your life can be transformed using spirituality. We are going to deep dive into the discussions about how your parenting can transform when you walk this path. She has been bestowed with Youth Ideathon Innovative Principal Award and Search Impact Award by TERI. She will be receiving Dr. Kalam's Memorial Teaching Award as well. And I am so thrilled to have you, Vandana ji, on this episode. A very warm welcome to the Mid Show. Thank you so much, Yashika. I am equally excited and I'm looking forward to talking and having fun with you. Yeah, it will be pleasure will all be mine. Before we dive deep into this conversations, let's just take 2 minutes, think about what is our intention of doing this podcast. We surrender this intention to the divine, and then we can dive deep into the conversation ahead. So let's just take 2 minutes. So Vandana ji, I invite you to share your intention with us. My intention is to reach out to the parent community, help them connect with their spiritual self as parents, to reach out to the student community, help them connect with their spiritual selves with the teachers around them, so that this trilogy is complete. There is no gap in connection, and the students can emerge as the best version of themselves. Beautiful, beautiful, and very empowering. And my intention is very selfish. As a parent, I want to grow through this conversation. I want to discuss my personal challenges, and probably all other parents out there who are into conscious parenting might have these challenges as well, and they get benefited through this conversation as well. So, let's just get started. Before we dive into conscious parenting, I want to understand your journey, how you came into spirituality, how this parenting, conscious parenting, everything opened up for you, how you discovered your purpose. So, stage is all yours. So it's been a very interesting journey, a journey of self-discovery, a journey that started from some confusions in life, which was after I was mother of 2 children. I have 2 daughters, and it was time to go back to work. In fact, after my first daughter was born, I took a break. मैंने एक ब्रेक लिया था और 10 साल के लिए मैं घर पे थी और फिर मेरी छोटी बिटिया आई. I was still part of that break, and I went on to be a consultant at that time. मैंने थोड़ा freelancing का काम शुरू कर लिया था. And after that was over, there were some confusions in my mind. और मुझे लग रहा था कि कुछ what is the direction I should choose? Should I go back to full-time work? Should I be a stay-at-home mother, just being with my daughters, which gives me a lot of pleasure? But कुछ एक missing link है. तो वो मिसिंग लिंक को टटोलते आई थिंक 15 years ago I came very close to the bigging of
और यू कैन से डीपनिंग ऑफ माय स्पिरिचुअल जर्नी। स्पिरिचुअलिटी का कनेक्शन तो मेरा 30 इयर्स पहले शुरू हो ही गया था जब मैंने टीचिंग लिया था। पर ये 15 साल पहले एक ये ट्वैंग वाली फीलिंग आई थी, जब Mhm. मैंने योगा क्लासेस जॉइन की थी। Mhm. मैं बहुत रिलक्टेंट होती थी योगा करने के लिए या कोई भी एक रेगुलर रूटीन में एक्सरसाइज करने के लिए मैं रिलक्टेंट होती थी, क्योंकि टाइम मैनेजमेंट मेरी स्ट्रेंथ नहीं था। मैं मौके में खो जाती थी, अपने लिए अलग से टाइम निकालना मेरे लिए बहुत मुश्किल था। लेकिन माय मदर शी टोल्ड मी कि तुम योगा जॉइन करो, योगा जॉइन करने से योर टाइम मैनेजमेंट विल बी बेटर। मैंने पूछा कैसे? तो मम्मी ने ही मुझे बोला कि जो काम तुम घंटे में करते हो 15 मिनट में हो जाएगा। तो वो 15 साल पहले मुझे वो बात समझ में आई। कभी-कभी हम अपनी पेरेंट्स की बात बचपन में कही हुई बहुत देर बाद समझते हैं। फिर मैंने योगा जॉइन किया और योगा जॉइन करने के साथ ही मेरी स्पिरिचुअल जर्नी शुरू हुई और मुझे पता लगा कि मेरी बॉडी एक योगा से बहुत अच्छे से कनेक्ट करती है। तो शुरू में मैंने योगा को किया एक फिज़िकल लेवल पे किया। 25 सूर्य नमस्कार तक कर लेती थी मैं उस समय, 15 साल पहले। मुझे Mhm. लगता था वाह! वाह! पर उसके बाद 15 साल में मैं आज के टाइम में 2 सूर्य नमस्कार से ज़्यादा नहीं करती हूँ। Hmm. ये है मेरी स्पिरिचुअल जर्नी। So overdue to optimism, right? मे बी ओवरडूइंग एंड एक ही लेवल पे करना और कम करना, मल्टीपल लेवल्स को कंबाइन करना, एक होलिस्टिक वे में करना, इस चीज़ को समझ पाना, Hmm. इसी को मेरी स्पिरिचुअल जर्नी का नाम दे सकते हैं। So आप अपनी स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस में आप योगा आसन्स करते हैं एंड थ्रू दैट यू गेट इनटू द मोड ऑफ माइंडफुलनेस, एम आई अंडरस्टैंडिंग इट राइट? शुरुआत योगा से हुई थी। ओके, सो देयर इज मोर टू दैट। योगासन से हुई थी। तो ओके। शुरू में मैंने आसन के शीर्षासन सीखा, वृश्चिक हम्म। सीखा। मेरे योगा गुरु मिस्टर आशीष हैं, उन्होंने हम्म। मुझे ट्रेन किया। पहले हम एक ग्रुप क्लास में ट्रेन करते थे, वो ग्रुप क्लास मेरे घर में होती थी, तो हम इकट्ठे मिलकर करते थे। तो वो आसन मेरे चलते चले गए काफ़ी सालों तक, 4-5 साल। और फिर हम्म। मेरी मुलाकात हुई डॉक्टर दीपेश से। हम्म। डॉक्टर दीपेश के साथ मैंने कुछ सेशंस, मेरा माइंड रेस्टलेस रहता था हमेशा। ओके। उस समय वो एक रेकी का सेशन, रेकी हीलिंग का सेशन, मैंने कहा चलो देखते हैं क्या है, उनके साथ गई वहाँ रेकी हीलिंग का सेशन किया, ट्रेनिंग ली उनसे, आप गुरु समझा। योगी बुद्धदेव के बारे में बात कर रहे हैं राइट? जी, गुरु जी, योगी। तो हम लोग उनको डॉक्टर दिपेश के नाम से नहीं जानते। मैं सर को डॉक्टर दीपेश के नाम से जानती हूँ। हम्म। तो उनके साथ मैंने बहुत सारे कोर्सेज़ किए, साथ-साथ मेरी योगा जर्नी चलती रही। ओके। योगा जर्नी मेरी चलती रही और काफ़ी आसन और उनको होल्ड करना और मेरी बॉडी में बहुत फिज़िकल बॉडी में बहुत सारे ट्रांसफ़ॉर्मेशंस आए योगा जर्नी की वज़ह से। बहुत रेगुलर प्रैक्टिस करती थी, एक मोटिवेटेड टीम के साथ करती थी। बट फिर भी कुछ लग रहा था एक माइंड को कुछ अलग कुछ और चाहिए था। तो उसके लिए फिर मैंने डॉक्टर दीपेश महागुरु योगी बुद्धदेव के साथ। महागुरु योगी बुद्धदेव के साथ रेकी लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, एक मैंने उनके साथ कोर्स किया था संयम का, पास्ट लाइफ रिग्रेशन पे और द लिस्ट गोज़ ऑन एंड ऑन। और वो बैठ जाती थी और उनके कोर्स होते थे तब उस समय वो मोहाली में ही थे जहाँ मैं रहती हूँ। बैठ हम्म। के नोट्स लिखती थी मैं। आई वाज़ वेरी क्यूरियस, आई वाज़ अ सीकर। मुझे लगता हम्म। था मैं 1 मिनट में सब कुछ सीख जाऊँ। तो मैं लिखती हम्म। थी नोट्स, एक पढ़ाकू बच्चे की तरह बहुत नोट्स लिखती थी, लिखती थी, लिखती सर बोलते थे, मैं लिखती थी उनको। और आप समझ लो कि मेरे को 10 साल लगे वो नोट्स लिखते-लिखते, 10 साल तो मैंने उनके साथ कोर्सेज़ किए करीबन। लेकिन पिछले 5 साल से थोड़ा बहुत कुछ समझ में आने लगा, मुझे लिखना नहीं पड़ता। हम्म। समझने लगी और वही चीज़ें जो मैंने लिखी थी उस समय, वो मुझे पता नहीं क्यों अब समझ में आती हैं। स्पिरिचुअलिटी कुछ अवेकनिंग के साथ होती है, बाद में समझ आती है। तो अब मुझे समझ में आता है, हम्म। अपने हिसाब से, कुछ अलग किस्म से। सो आप 10 साल गुरुजी के साथ रहे राइट? सो जस्ट टू कंफर्म आपका चैलेंज एज ये रहा था कि बीइंग अ पेरेंट हाउ यू हैव अ करियर यस। and be with your kids and take care of your kids holistically as well, right? And एक्चुअली when हाँ, एक्चुअली चैलेंज अगर हम कहें तो मैं हमेशा से परफेक्शनिस्ट रही हूँ। तो मुझे चाहिए था मैं परफेक्ट वाइफ हूँ, मुझे परफेक्ट हस्बैंड भी मिले, मैं hmm, परफेक्ट डॉटर हूँ, hmm, परफेक्ट पेरेंट्स भी हों, परफेक्ट hmm, डॉटर इन लॉ हूँ, hmm, परफेक्ट इन-लॉज़ भी हों, परफेक्ट hmm, मदर हूँ, परफेक्ट बच्चे भी हों और सब परफेक्शंस हर जगह और परफेक्ट एट माय वर्क भी हूँ। hmm, वो इतनी ज़्यादा अपने से ओवर एक्सपेक्टेशन थी, hmm, इनेबिलिटी टू चूज़, hmm, क्लैरिटी टू चूज़ व्हाट आई रियली वांट टू डू।
तो वो मेरा चैलेंज था। तो उस पॉइंट पे मैं और बहुत रेस्टलेस हो गई थी मैं, ट्राइंग टू हुँ, मेक द चॉइसेस बिकॉज़ व्हेन यू आर डूइंग टू मेनी थिंग्स टुगेदर, तो उसमें हुँ, फिर डाइल्यूशन हो जाता है, और डाइल्यूट जब एफर्ट होता है, आउटपुट हुँ, डाइल्यूट होता है, तो मैं उससे खुश नहीं होती थी। तो उस हुँ। वजह से मैं समझ लीजिए कि स्पिरिचुअलिटी की तरफ गई, टू And गेन how क्लैरिटी। did and how did Guruji help you through this? उनके courses तो I am aware they are like eye openers. They just open up your mind and you first time it feels like कि अरे ऐसे भी देखा जा सकता है situation को, अरे life को ऐसे भी देखा जा सकता है. So how was your experience with them? How what is the magnitude of change that you had just because you were going on this path with him? ह्यूज चेंज। बट इनिशियली मैं उनसे कुछ पर्सनल बात नहीं करती थी। आई वाज़ अ वेरी प्राइवेट पर्सन। मुझे लगता Hmm. था मेरे चैलेंजेस जो हैं मेरे फेलियर्स हैं। Hmm. तो मैं कभी भी अपने चैलेंजेस, और मुझे लगता था ये तो हर एक की लाइफ में होता है। Hmm. मम्मी की लाइफ में भी हुआ है, ये मदर इन लॉ की लाइफ में, फ्रेंड्स की लाइफ में भी, तो इसमें क्या है? इसमें क्या बड़ी बात है? इसको शेयर, मतलब मुझे लगता था अगर मैं शेयर करूँगी, तो वो मैं अपने परफेक्शन से कम हो जाऊँगी। तो मेरे Hmm. सर के साथ पर्सनल मैं सिर्फ कोर्सेज़ अटेंड करती रहती थी। Hmm. धीरे-धीरे मुझे समझ में आया कि चैलेंजेस के बारे में बात करना ज़रूरी है। Hmm. चैलेंजेस चाहे वो कितने बड़े हों, कितने छोटे हों, आपके चैलेंजेस हैं वो। Hmm. आपको उनको सॉल्व करने के लिए हेल्प है, देयर इज़ हेल्प आउट देयर। उससे पहले Hmm. मुझे लगता था कि मैं ये कोर्सेज़ अटेंड करूँगी और मैं इन चैलेंजेस के साथ खुद ही डील कर लूँगी। Right. तो मुझे अपने ऊपर एक आत्मविश्वास बहुत था। समटाइम्स वी आर Hmm. नॉट कॉम्पिटेंट टू डू व्हाट वी वांट टू डू एंड वी हेजिटेट टू आस्क फॉर हेल्प। सो आई वाज़ Right. दैट पर्सन। तो Right. धीरे-धीरे कोर्सेज़ करते-करते समहाउ मेरी अवेयरनेस में ये आ गया कि चैलेंजेस हैं, देयर इज़ हेल्प, देयर इज़ मेंटरशिप। अगर आप उनके बारे में बात करोगे, तो मैं बात भी अपने चैलेंज की छोटी-सी करती थी, एक सेंटेंस में बात करती थी। जैसे उनसे मैंने कहना कि मुझे इस पर्सन को देख के बहुत गुस्सा आता है। Hmm. मुझे बहुत गुस्सा आता है और मेरे माइंड में एक ऐसी कहानी चल जाती है नेगेटिव स्पाइरल पे। वो पूरी बचपन से लेके अब तक कहानी मेरे दिमाग में चलती है। तो उन्होंने मुझसे ये ही वाज़ नेवर इंट्रूसिव। हाँ, जी, बिल्कुल। हुँ, इंट्रूसिव नहीं थे वो, और ना मैं भी नीचे शेयर करना चाहती थी। तो उन्होंने कहा आप एक्सहेलेशन लॉन्ग एक्सहेलेशन कीजिए। हुँ, व्हेन यू सी दैट पर्सन और थिंक ऑफ दैट पर्सन, अपने एक्सहेलेशन को बढ़ा दीजिए। तो ऐसे छोटे-छोटे टूल्स को यूज़ करते-करते मेरी अवेयरनेस बढ़ने लगी। हुँ, अवेयरनेस बढ़ते-बढ़ते फिर मुझे समझ में आ गया क्या चीज़ें मैं खुद हैंडल कर सकती हूँ, क्योंकि जब तक मैं खुद ट्राई नहीं कर लेती कुछ सॉल्व करने के लिए, तब तक मैं बाहर से हेल्प नहीं माँग। बाहर नहीं। हुँ, और मुझे समझ में आ गया ये मेरे कोर्स के बाहर है, मेरी हुँ, कैपेसिटी के बाहर है। फिर उसके लिए मैं फिर उनकी फिर हेल्प ले लेती हूँ, या मेरे पास और भी मेरे मेंटर्स हैं। सो अब मुझे पता लग गया किस मेंटर से क्या हेल्प लेनी है, क्योंकि मुझे अपने मेरा पर्पस बहुत क्लियर है कि मुझे अपनी लाइफ़ को एक फुल सोलफुल सेल्फ में जीना है। हुँ, उसके लिए जो चैलेंजेस आएँगे, उनको मैंने ज़रूर सॉल्व करना। आई हैव टू रिमूव बैरियर्स, चाहे हुँ, अपना बैरियर हो, बच्चों का बैरियर हो, स्कूल में बैरियर हो, तो उसके लिए मदद लेनी ज़रूरी है। यू कांट डू एवरीथिंग योरसेल्फ। तो हुँ। आई हैव बीन लकी, आई हैव बीन वेरी वेरी, गॉड हैज़ बीन काइंड। आई हैव बीन ब्लेस्ड टू हैव बीन सपोर्टेड बाय फैंटास्टिक मेंटर्स, एंड डॉक्टर दीपेश हैज़ बीन माय स्पिरिचुअल मेंटर। Beautiful, beautiful. So, just want to know your opinion on this. How is perfection and living soulfully different? So, you have grown from perfection to living soulfully. So, what is that different? How it impacted your life? How it transformed your life? सी परफेक्शन, मैं अपने ही एग्ज़ाम्पल से, परफेक्शन आई वांटेड परफेक्शन एवरीवेयर। Hmm, I wanted to do so much, everything. मेरे लिए परफेक्शन था, माय लाइफ हैज़ टू बी परफेक्ट इन ऑल स्फीयर्स। सो आई एम अपनी एनर्जी को मैं बाँट के हर बॉक्स में डाल रही हूँ। फोकस नहीं है, बिखर रही है मेरी एनर्जी, hmm, ठीक है? hmm, बट जब आप सोलफुली जीते हो, तो आप चूज़ करने लग जाते हो। आपको एनर्जी लगाने का फ़ोकस बढ़ जाता है। आप हर चीज़ में परफेक्शन नहीं खोजते। आप डिफ़ाइन कर लेते हो कि मुझे इन चीज़ों में परफेक्शन चाहिए। बाकी जगह आपको अपने आप एक्सेप्ट कर लेती है इफ यू आर लिविंग योर सोलफुल लाइफ। hmm. So it's like from scattering of energy like that to focusing of energy in the right Powerful. way. That is the difference. Powerful, powerful. So how did this parenting ki Pathshala, your YouTube channel, how did this came into picture? When did this journey started? बड़ी मज़ेदार कहानी है। 2018, I have been always a self-learner. So I was the school that I was in earlier, it was catering to the underprivileged section. तो वहाँ Hmm, पे हमारे को रिसोर्सेज़ का क्रंच होता था। मतलब हमें चूज़ करना पड़ता था कि हम कहाँ पे अपने रिसोर्सेज़ डालेंगे।
टू गेट मैक्सिमम आउटपुट, है ना? तो हुँ, वहाँ पे मुझे आई हैड गॉन टू आईआईएम अहमदाबाद में गई थी। वहाँ पर मैंने एक कोर्स अटेंड किया था लीडरशिप ट्रेनिंग का, स्ट्रेटेजिक लीडरशिप ट्रेनिंग का। वहाँ हुँ, बैठे-बैठे मुझे आइडिया आया क्योंकि स्कूल फॉर द अंडर प्रिविलेज्ड में मेरी फाइट थी कि मैं जो है बिकॉज़ आई अर्लियर हैड टीचिंग एक्सपीरियंस ऑफ वर्किंग इन स्कूल्स विद रिच रिसोर्सेज़ एंड प्रिविलेज्ड सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। तो वो टूल्स और मेथड्स और स्ट्रैटेजीज़ मुझे आती थी क्योंकि आई वाज़ अ हुँ, ब्रिलियंट टीचर। तो मेरा ये मानना था कि अगर मैं यही सेम चीज़ें अंडर प्रिविलेज के लिए यूज़ करूँगी तो मुझे आउटपुट ज़रूर मिलेगा। मेरी एक किस्म से ये लड़ाई थी। जेनेटिकली नोन बैरियर्स टू लर्निंग है ये, लेकिन मैं हुँ, उनसे लड़ रही थी। दैट वाज़ माय ड्राइव। हुँ, तो जब मैंने उस वहाँ पे 6 साल मैंने 2012 से लेके 2018 तक पूरा मैंने ज़ोर लगाया एंड हमें बड़े अच्छा रिज़ल्ट मिला। बट फिर भी द परफेक्ट मी वाज़ सर्चिंग फॉर मोर। मतलब हुँ, मुझे चाहिए और भी चाहिए था कुछ। तो हुँ, मैंने देखा कि वहाँ पर उस सेक्शन में जो पेरेंट्स हैं, वो अपने बच्चों को सपोर्ट नहीं करते थे। होम हुँ, एनवायरनमेंट में जो सपोर्ट बच्चों को एक नर्चरिंग, केयरिंग का मिलना चाहिए, वो नहीं था। तो मैंने सोचा क्यों ना एक जोर लगाया जाए, एक पेरेंटिंग स्कूल शुरू किया जाए। हुँ, और पेरेंटिंग स्कूल शुरू किया जाए, वहाँ मुझे अहमदाबाद आया, मैं अहमदाबाद में वो आइडिया आया, मैं वापस आई और मैंने पेरेंटिंग स्कूल शुरू करने के लिए एक हमारे पास डॉक्टर अगोचिया होते थे, उनको मैंने अपने स्कूल में इनवाइट किया। हुँ, हुँ, और हम लोगों ने पेरेंट्स, स्टूडेंट्स एंड टीचर्स के साथ अलग-अलग मीटिंग की। पेरेंट्स से पूछा कि उनको स्टूडेंट्स और टीचर्स से क्या एक्सपेक्टेशन है। स्टूडेंट्स से पूछा कि उनको पेरेंट्स और टीचर्स के साथ क्या एक्सपेक्टेशंस है। और हुँ, टीचर्स से पूछा कि उनको स्टूडेंट्स और पेरेंट्स से क्या एक्सपेक्टेशंस है। और जब हमने सब कुछ मैच किया, तो हमने ये रियलाइज़ किया कि तीनों का कनेक्शन बनाना पड़ेगा, पेरेंट्स, स्टूडेंट एंड टीचर का। हुँ, ठीक है? स्टूडेंट को भी कोई ज़िम्मेवारी लेनी पड़ेगी, पेरेंट को भी ज़िम्मेवारी लेनी पड़ेगी और टीचर्स तो ज़िम्मेवारी लेते ही हैं। तभी वो कनेक्शन और ट्रायोलॉजी कंप्लीट होगी। तो इस चीज़ को लेके हमने फिज़िकल सेल्फ में पेरेंटिंग स्कूल का कॉन्सेप्ट वहाँ शुरू किया। हम अलग-अलग रिसोर्स पर्सन्स को बुलाते थे, ह्यूमन वैल्यूज़ के बारे में बात करते थे। तो शुरू में आप मानोगे नहीं, जब हमने पेरेंट्स को इनवाइट किया इस सेशन के लिए, तो 4-5 पेरेंट्स आते थे, कमरा खाली होता था। हुँ, धीरे-धीरे वो कमरा इतना भर गया कि हमें फिर मल्टीपल सेशंस इन अ डे करना पड़ता था। और फिर कोविड आ गया। कोविड में हुँ, क्या हो गया, सब फिज़िकल इंटरैक्शन तो बंद हो गई, तो वो हुँ, पेरेंटिंग स्कूल थोड़ी देर के लिए ठंडा हो गया। और हुँ, उसके बाद फिर अगेन मेरे को कुछ अंदर से हलचल होने लगी कि मुझे वो पेरेंट्स से कनेक्शन बनाना है। मैंने अपना ये यूट्यूब चैनल शुरू किया। शुरू में मैं अपने अगेन यूट्यूब चैनल में बहुत कुछ करना चाहती थी। पेरेंट्स से भी कनेक्ट करना है, टीचर से भी, स्टूडेंट से भी कनेक्ट करना है। तो वो एक कन्फ्यूज़न सी होने लगी। हुँ, देन वहाँ से फिर मैंने चूज़ किया कि मैं इस चैनल के थ्रू, क्योंकि स्कूल में टीचर्स को भी मैं मोटिवेट करती हूँ, हुँ, स्टूडेंट से भी बात करती हूँ, क्लास में जाके ज़रूर पढ़ाती हूँ उन्हें, हुँ, असेंबलीज़ में बात करती हूँ। मैंने सोचा कि इस चैनल में कम्युनिकेशन मैं केवल पेरेंट्स से करूँगी। पेरेंट्स के साथ रखो। हुँ, फिर नाम मैंने दिया, बल्कि मेरा यूट्यूब चैनल पहले जब शुरू हुआ था तो मेरे अपने नाम पे था, वंदना सक्सेना। फिर हुँ, 1 साल पहले मैंने नाम दिया पेरेंटिंग की पाठशाला। और जब ये नाम निकला, तो मैंने ये नहीं सोचा था कि ये पेरेंटिंग स्कूल जो 6 साल पहले मैंने सोचा था वही नाम है। वो जब नाम दे दिया तो अरे! वो तो इंग्लिश में पेरेंटिंग स्कूल था, अब ये हिंदी में पेरेंटिंग की पाठशाला मैच हो गया। हुँ, ये भी अगेन स्पिरिचुअलिटी कनेक्शन है। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। राहें मिल गई, हाँ? लाइव में। जहाँ से छोड़ा था वहीं से दोबारा वहीं पे, स्टार्ट हो। हाँ, वहीं पे आ गए। तो ऐसे हुआ। ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल, वेरी एम्पावरिंग। और बहुत कम लोग हैं जो अपनी लाइफ के चैलेंजेस के थ्रू पब्लिक के चैलेंजेस, मासेस के चैलेंजेस को एड्रेस करते हैं। एंड दीज आर डेफिनेटली लीडर्स, दीज आर डेफिनेटली इनोवेटर्स। सो वी आर थैंकफुल दैट यू टुक दिस इनिशिएटिव एंड इट्स हेल्पिंग सो मेनी पेरेंट्स। सो थैंक यू सो मच। अब नाउ आई एम कमिंग टू माय सेल्फिश क्वेश्चंस। अब मैं आपको छोड़ने नहीं वाली हूँ। सो सबसे पहले मैं पूछना चाहती हूँ कि आजकल मैं नोटिस कर रही हूँ कि बहुत सारे पेरेंट्स कॉन्शियस हैं कि उनको कैसे बात करनी है अपने बच्चे के साथ, उसको कब उस वो सोना चाहिए, कब उठना चाहिए, क्या उसे खाना चाहिए, उसके साथ बात कैसे करनी है, या कोई थर्ड पर्सन उसको अप्रोच कर रहा है तो कैसे बच्चे को प्रोटेक्ट करना है। ये अवेयरनेस धीरे-धीरे बहुत ज़्यादा फैल रही है। पर एक पार्ट ऑफ सोसाइटी में मुझे लगता है कि थोड़ा-सा बच्चों के साथ अन्याय टाइप हो रहा है। मुझे लगता है कि स्किल्स को लेके पेरेंट्स बहुत ज़्यादा हाइप है कि अगर मेरा बच्चा 5 साल का है तो उसको 4 तरह की लैंग्वेज आनी चाहिए, 2 तरह के म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट आने चाहिए और उसका स्टेज एक्सपोज़र तो मस्ट है कि वो कहीं डांस करे, कहीं स्पोर्ट्स जाए, कहीं कुछ करे। मुझे लगता है कहीं न कहीं बच्चों का बचपन जो है वो छिन रहा है
और जहाँ तक मैं पढ़ती आ रही हूँ, मतलब मैंने जितना लिटरेचर पढ़ा है, मैंने देखा है कि वैदिक स्कूल्स भी थे, जो गुरुकुल भी थे पुराने हमारे, तो वहाँ भी 7-8 साल तक तो बच्चों को घर पे ही रखते थे, भई चिल आउट। उसके बाद दे गो थ्रू अ रिगरस ट्रेनिंग, फिर वो सब कुछ ही सीखते थे। दे फ्रॉम घर में बैठ के एम्ब्रॉयडरी करने से लेकर वॉर स्टेट में जाके लड़ने तक सब कुछ बच्चे सीखते ही थे। बट आज मुझे लग रहा है कि कॉम्पिटिशन इतना ज़्यादा है और बच्चों को जो है ना निचोड़ दिया गया है पूरी तरीके से। सो व्हाट्स योर ओपिनियन ऑन दैट, एंड इफ यू एग्री विद व्हाट आई एम सेइंग, हाउ कैन वी ओवरकम दिस? बहुत अच्छा, इंटरेस्टिंग एंड वेरी वेरी डीप क्वेश्चन। बड़ा डीप क्वेश्चन है ये। और इसके बहुत सारे मुद्दे हैं इसके, बहुत सारे मुद्दे, क्योंकि ज़माना बदल गया। हम्म। ज़माने में क्या बदला? सबसे पहले तो जो सेक्शन ऑफ द सोसाइटी के पेरेंट्स की आप बात कर रहे हो, वो एक सर्वाइवल से तो ऊपर है। राइट। दे आर द वन्स हू आर प्रिविलेज्ड, कि वो अपने राइट। सर्वाइवल पे काम नहीं कर रहे हैं। इसीलिए उनकी अवेयरनेस, उन पेरेंट्स की अवेयरनेस जो उनके बच्चों को आना चाहिए, उसको लेके बहुत-बहुत हाई है ना? हम्म। कि हम्म। वो रिसर्च पेपर्स पढ़ते हैं, वो इंटरनेट पे भी जाते हैं, न्यू थ्योरीज़ और फिलॉसफी को भी पढ़ते हैं, इसलिए उनकी अवेयरनेस बहुत हाई है, हम्म। ठीक है? हम्म। तो ये पेरेंट्स जो रिसर्च पेपर्स पढ़ते हैं, उसमें आजकल ये कहा जा रहा है 2 से 7 साल के बच्चे में, व्हिच इज़ द हम्म। एक ब्रेन में मैक्सिमम डेवलपमेंट होती है। इसलिए इस समय बच्चों को बहुत सारे ऑप्शंस दिए जाएँ। हम्म। बहुत सारे ऑप्शंस दिए जाएँ एंड उनको चॉइसेस दिए जाएँ, ताकि बच्चे की जो है अपने आप क्रिटिकल थिंकिंग स्किल भी बढ़े और वो चूज़ करें कि उन्होंने करना क्या है, और वो मल्टीपल थिंग्स करने से ब्रेन डेवलपमेंट मैक्सिमम होगी। अब ये ओके। पेरेंट्स को, दिस इज़ द बेसिस, रिसर्च जो बेसिस है, इस वजह से करना चाहते हैं, राइट? लेकिन करते-करते क्या होता है? क्या होता है? वो ओवर देखते हैं टू। कॉम्पिटिशन। हम्म। इंटेंशन हमने सेट की ना शुरू में, वो हम्म। इंटेंशन और कॉम्पिटिशन में क्लैश आ जाता है। ओके। अगले का बच्चा 4 करता है तो मेरा 3 क्यों करे, मेरा भी 5 करे। वो कॉम्पिटिशन में बह जाते हैं। हुँ, ओके। टाइम उनके पास है नहीं। हम्म। जनरली कपल्स आर वर्किंग, हम्म। राइट? हम्म। अगर हम बच्चों को, अच्छा, एक तो कॉम्पिटिशन में बह जाते हैं, एक दूसरा बच्चों को बिज़ी करने के चक्कर में बह जाते हैं, बिकॉज़ दे पर्सनली डोंट हैव द टाइम टू फिज़िकली स्पेंड विद देयर चिल्ड्रन। यू सी, देयर आर वर्किंग कपल्स, राइट? तो राइट। उनके पास टाइम का क्रंच आ गया। तो हम्म। एक तो उन्होंने इंटेंशन थी कि जॉइन करवाएँ कि मैक्सिमम ब्रेन डेवलपमेंट हो, वो हम्म। जस्टिफिकेशन बन गई। हम्म। कॉम्पिटिशन की वजह से आप 1 नहीं, 2 नहीं, 3 या 4 क्लासेस आप अटेंड करवा रहे हो। फिर आ गया टाइम क्रंच, कि बच्चे को हम इतना बिज़ी कर दें कि कुछ ना कुछ कंस्ट्रक्टिव बच्चा करता जा रहा है, तो वन आफ्टर द अदर विदाउट गिविंग अ गैप आप क्लासेस अटेंड कराते ही चले जा रहे हो। तो ये सारी कन्फ्यूज़न है पेरेंट्स की। अब आते हैं हम बच्चों पे। बच्चे बदल गए, इंस्टेंट ग्रैटिफिकेशन उनको चाहिए। क्यों? क्योंकि जिन पेरेंट्स से वो बच्चे आए हैं, वो पेरेंट्स भी डिफरेंट हैं। उनको वो कहते नहीं, मुँह से बात निकली नहीं, फ़ौरन उनको चीज़ मिलती है। ठीक है? हम्म। दे आर हम्म। नॉट एबल टू अडैप्ट, शेयरिंग, ये सारी जो एक बेसिक ह्यूमन लेवल की वैल्यूज़ हैं, वो बच्चों में कम हो गई है। तो वो भी जल्दी-जल्दी नई-नई चीज़ें करना चाहते हैं। उनको हर सेकंड में कुछ नया करने की आदत बन गई है। तीसरी चीज़ सोसाइटी, वो भी बदल गई है। आजकल के टाइम में जब हम एक सर्वाइवल के लिए नहीं काम कर रहे, तो एजुकेशन में नॉलेज से ज़्यादा स्किल्स को वैल्यू दी जा रही है। स्किल्स ऑफ लिटरेसी, हम्म। स्किल्स ऑफ न्यूमरेसी हम्म। एंड क्रिटिकल एंड क्रिएटिव थिंकिंग एबिलिटी। तो ये भी चीज़ जो पेरेंट्स ने पढ़ी हुई है कि स्किल पे फ़ोकस करो, स्किल पे फ़ोकस करो, स्किल पे फ़ोकस करो, तो ये ओवरडू हो रहा है। तो इफ वी आर टीचिंग चिल्ड्रन मल्टीपल स्किल्स, इसमें कोई हार्म नहीं है, but it is not a substitute to the time that we must spend with our children. Children still need unconditional emotional support. ये बच्चों को चाहिए। बच्चों को इतनी सारी स्किल्स सिखाने के लिए, अगर अब चले घर में हम बिठाएँ बच्चों को, जैसे पहले होता था कि बच्चों को 6-7 साल की उम्र तक हम बच्चों को घर में रखते थे। आजकल के ज़माने में हम ये नहीं कर सकते, बिकॉज़ हम ही घर में नहीं हैं एंड बच्चे भी फ़र्क है, ठीक है ना? हम्म। तो हम्म। आप उनको, द वे आउट फॉर दिस इज़ ऑफ कोर्स चूज़, ऑप्शंस दीजिए, लेकिन कम से कम, अच्छा, एक चीज़ और, कि जैसे कि मेरी अपनी ग्रैंडडॉटर है, शी इज़ 9 हम्म। मंथ्स ओल्ड, हम्म। उसको भी एक-एक सेकंड में अलग-अलग टॉय चाहिए। मैंने उसके सामने एक इतना बड़ा लकड़ी का हाथी रख दिया। हम्म। मैंने कहा तुम इसी के संग खेलो इस वक़्त। उसने हम्म। उस हाथी के साथ इतने तरीके से खेली, वो एक ही हाथी के साथ, कभी उसके सींग को पकड़ी, कभी हम्म। पीछे से आई, कभी उसको गिराना चाहा। तो वो धीरे-धीरे उस एक चीज़ के साथ इतने मज़े से खेली, क्योंकि बच्चे तो हर चीज़ को टॉय बना लेते हैं।
Hmm. तो शी वाज़ इनफैक्ट आई मीन आई फेल्ट हैप्पियर सीइंग दैट और मुझे लगा कि मैंने इमीडिएटली अपनी बेटी को बोला कि उसके सामने से बहुत सारे टॉयज़ हटा दो। 1 दो, उसके साथ इनोवेट करने दो, उसको Hmm. पूरी तरह उसके साथ खेलने दो, उसको उसका Hmm. मज़ा लेने दो। और ये Hmm. मेरे को कैसे पता लगा क्योंकि जो हमारे घर में भैया जो हमारे कुक भैया हैं, तो उनका बेटा जो है, एक साइकिल को लेके 4 गेम्स खेलता है। पहले तो Hmm. वो साइकिल को चलाता है एक नॉर्मल स्पीड पे, Hmm. फिर उसके बाद अपनी धुन में आता है, एक कोई बलून सा फिट कर देता है, फिर उसको वो ग्रर करके चलाता है जैसे वो रेसिंग साइकिल चला रहा है। Hmm. फिर उसके बाद वो साइकिल को गोल-गोल लेके घूमता है और 2-3 गेम्स वो और बना लेता है। तो यहाँ से बच्चे की इंटेलिजेंस डेवलप हो रही है। लेकिन आजकल के पेरेंट्स को ये समझना ज़रूरी है, 2 चीज़ें, डोंट कन्फ्यूज़ योर चाइल्ड विद ऑप्शंस, गिव देम ऑप्शंस, बट Hmm. आराम से बैठ के देखो वो चूज़ क्या कर रहे हैं, फिर उसको उस चॉइस को पूरा एंड टू एंड ले जाने दो। जब बच्चे को आपकी ज़रूरत है, इमोशनल नीड है, प्लीज़ बी अराउंड। Hmm. कॉम्पिटिशन में कुछ मत करो, ऑब्ज़र्व योर चाइल्ड, अपने बच्चे की नीड को समझो, डीप Hmm. कनेक्शन बनाओ Hmm. एंड देन स्लो डाउन, रोम वाज़ नेवर नॉट बिल्ट इन अ डे, व्हाट्स द रश? हमारा Hmm. बच्चा पीछे रह जाएगा वाला सिंड्रोम बहुतों को है आजकल। स्कूल में भी आते हैं मेरे पास पेरेंट्स। हम पीछे Hmm. नहीं रहेंगे, कोई पीछे नहीं रहता है। आपने देखा ना मैंने योगासन से शुरू किया 25 से लेके मैं 2 पे आ गई। Hmm. क्योंकि मेरे चेहरे की खुशी अब और तब में बहुत फ़र्क है। हुँ। कुछ डाउट्स यहाँ पे। एक आपने बात कही स्टार्टिंग में कि ऑप्शंस देने से इस टाइम पे 2 टू 7 की एज में इट लीड्स टू अ मैक्सिमम डेवलपमेंट ऑफ देयर ब्रेन कैपेसिटी। सो हाउ एज़ अ पेरेंट आई कैन डिसाइड कि कितने ऑप्शंस मैं एक टाइम पे उसको ऑफर करूँ? जैसे फॉर एग्जांपल आई माय चाइल्ड इज़ 6 इयर्स ओल्ड हुँ, एंड करंटली शी इज़ डूइंग ताइक्वांडो, शी इज़ डूइंग सम डांसिंग एंड देन ऑलरेडी स्कूल से जो है मैथ्स, इंग्लिश वो सब तो उसके पास चल ही रहा है। सो हुँ। हाउ डू आई एज़ अ पेरेंट डिसाइड कि what more options or less options should I provide my child for her? Like मैं भी नहीं चाहती कि उसका पूरा दिन पैक हो जाए, वो 3 बजे स्कूल से आ रही है, खाना खा रही है, होमवर्क कर रही है, 7 बजे तक क्लासेस है, डिनर किया और सो गई। आई डोंट वांट दैट काइंड ऑफ रूटीन ऑल्सो, बट आई डू वांट हर टू हैव ऑप्शंस एज वेल, जैसे आपने कहा। सो व्हाट कुड बी द अप्रोच तो फॉर दैट? ऑप्शन से बेसिकली हम बच्चे को एक्सपोज़र दे रहे हैं मल्टीपल थिंग्स के लिए, ठीक है? राइट, राइट। अब ये हमने चूज़ कैसे करना है? तो हम्म, एक्सपोज़र के लिए आप देखो कि सबसे पहले कि बच्चे को एक फिज़िकल फ़िटनेस के लिए प्रेफ़रेबली कुछ होना चाहिए। एक हम्म, आर्ट साइड पे कुछ ना कुछ होना चाहिए। लिटरेसी, न्यूमरेसी तो है ही। कुछ आउटडोर, इनडोर एक्टिविटी का मिक्स होना चाहिए, ठीक है? अब चूज़ अब आप कैसे करोगे? यू मस्ट ऑब्ज़र्व योर चाइल्ड। हुँ? ओके, अगर आप ताइक्वांडो की क्लास उनसे करवा रहे हो या एक और क्लास करवा रहे हो, तो आप देखो बच्चे का एंथुसियाज़्म किस क्लास में जाने के लिए ज़्यादा है। ओके। एंड देन आफ्टर वो हाउ उसका लॉन्ग नेचुरल आई इंटरेस्ट होगा। उसको ऑब्ज़र्व कीजिए ना आप। फॉर हाउ लॉन्ग, मतलब ऑब्जर्वेशन पीरियड कितना हो? जैसे 1 ईयर मैंने उसको ऑब्जर्व किया एंड देन आई सॉ कि हाँ, उसका डांस में इंटरेस्ट ज़्यादा है, देन आई लेट गो ऑफ द ताइक्वांडो एंड आई सपोर्ट हर इन द डांसिंग फील्ड, राइट? दैट्स व्हाट ठीक यू है, मीन टू से? तो ओके। ठीक है, तो 1 ईयर इज़ अ वेरी मतलब इतना टाइम नहीं लगता बच्चे के दिल में क्या है, बच्चे के दिल की क्या बात है, हुँ, वो जानना पहले। फिर उसकी आप देन यू कैन स्टार्ट से पहले तो इंटरेस्ट हो गया, फिर अब आप एप्टीट्यूड की तरफ ध्यान ले जा सकते हो। उसका आफ्टर इफेक्ट क्या हो रहा है उस एक्टिविटी का? उस समय परफॉर्मेंस नहीं देखनी है आपने। उसका आफ्टर इफेक्ट इज़ द चाइल्ड हैप्पियर? ओके, इज़ द ओके, दैट्स अ चाइल्ड वेरी, मोर सैटिस्फाइड? yeah, that is very like different way. So we are not seeing how he or she is performing in that particular section, but how he or she is feeling नहीं, after the class. Okay. तो फिर अब आप यू विल बी एबल टू डिसाइड कि व्हिच एक्टिविटी इज़ राइट फॉर योर चाइल्ड जिसमें बच्चे का इंटरेस्ट है, इस टाइम पे इंटरेस्ट की तरफ आप उसको फ़ोकस करवाइए। यू एंड देन यू मस्ट आल्सो ट्राई टू सी द इन्हेरेंट नेचर ऑफ द चाइल्ड। क्या नेचर है बच्चे की? अपना सोलफुल 2 टू 7 इयर्स में बच्चे अपने सोलफुल सेल्फ में ही होते हैं। Hmm. यू हैव टू यू हैव टू बी वेरी वेल कनेक्टेड विद योर चाइल्ड। आपकी उसकी आँखें देख उसके लिए टाइम लगाना पड़ता है। टाइम लगाने वाली बात से आपने पहले भी मेंशन किया कि कपल्स आजकल वर्किंग है, राइट? और देन नॉट जस्ट वर्किंग बट एज अ पर्सन अगर मैं हूँ तो मेरे को अपनी स्पिरिचुअल जर्नी भी देखनी है। आई वांट टू टेक केयर ऑफ माय बॉडी आल्सो, आई वांट टू टेक केयर ऑफ माय माइंड इंटेलिजेंस, आई वांट टू लर्न न्यू स्किल सेट्स एंड देन आई हैव
then I'm in a marriage. I want to have some couple time. I have to have some me time. How all of this fits in one plate? And then we need to spend time with our kids. We dearly want to spend time with our kids, but we don't have that time. How can we create that time? Like, I don't know. There is no magic wand which can do that, but probably from somebody who is so experienced as you are, we might get some tips and tricks that can ease this process, or even if it doesn't ease, but it creates a possibility. Okay, something is possible. Yeah. So from state of depression to a state of possibility, अगर आप ले जा सकें, me as a parent or other viewers as a parent, so that would be fantastic. Yeah, it's a tough question, but yes, इसका जवाब है. सबसे पहले तो parenting is very overwhelming journey. एक True. couple है, you're like romantic with each other, you have time for each other, you can do what you want at the drop of a hat, and then a third person enters our life. और हमारा पूरा टाइम ही हाईजैक हो जाता है. अंदर से गिल्ट हमारा हमें ये कहने नहीं देता कि भई ये बहुत हो गया. मतलब बहुत है, ये हम नहीं कर सकते, हमसे नहीं हो रहा, रात को जागना पड़ रहा है, नहीं हो रहा, हर वक़्त अपना खाना खाओ या बच्चे के खाने के बारे में सोचो. एंड इट्स मोर ओवरवेलमिंग फॉर द गर्ल्स बिकॉज़ बॉडी पे भी इम्पैक्ट होता है. सो True. द फर्स्ट थिंग टू डू इज़ दैट अपना सपोर्ट सिस्टम बनाइए. Hmm. सपोर्ट सिस्टम में फैमिलीज़ होती हैं. यू सी Hmm. हम ही सिर्फ़ पेरेंट्स के रोल में नहीं है. Hmm. मदर, फादर ही सिर्फ़ पेरेंट रोल में नहीं है. ठीक है? Hmm. उनके टीचर्स भी उनके पेरेंट रोल में हैं, ग्रैंड-पेरेंट्स उनके पेरेंट रोल में हैं. हम Hmm. क्यों भूल जाते हैं? Right. हम एक इतने ज़्यादा बच्चे को लेके इतने पॉसेसिव हो जाते हैं कि हम वी जस्ट डोंट वांट टू लेट गो ऑफ देम, वी डोंट वांट टू शेयर देम. हम वो रिलेशनशिप ही नहीं बनने देते उनका. Hmm. ग्रैंड पेरेंट्स के साथ अगर बच्चों का रिलेशनशिप बनने देंगे, वो अनकंडीशनल लव जो ग्रैंड पेरेंट्स बच्चों को दे सकते हैं, हम एज़ पेरेंट्स बिकॉज़ वी हैव अ लाइफ टू मेक एंड वी हैव अ लाइफ टू लिव. सो यू हैव टू Yeah. एक्सटेंड द पेरेंटिंग सर्कल. Hmm. First to understand that there's nothing guilty about feeling कि it's overwhelming. ठीक है? Support each other and even men के लिए it's very overwhelming because men somehow have this feeling that the wife should be more dedicated to them. और वो बच्चा आगे बीच में. वो बच्चे को भी प्यार भी करना है, बीवी ने भी उसको प्यार करना है, लेकिन husbands भी lost होते हैं इस समय. But Hmm. nobody talks about it openly. Hmm. Hmm. So Hmm. it's like you have to and everybody goes through with it, right? एवरीबॉडी गोज़ बट कोई इसके बारे में बात नहीं करता है, पर ये होता है. तो सबसे पहले तो अपने पेरेंटिंग सर्कल को अगर हमने एक्सपैंड किया, Hmm. देन अगेन लाइक नेचुरली यू यू वी वांट टू डू सो मेनी थिंग्स. तो अब हमें वी सी प्लानिंग इज़ द ओनली वे. टॉप प्रायोरिटी इज़ दैट द इमोशनल बॉन्ड बिटवीन द पेरेंट एंड द चाइल्ड मस्ट रिमेन गुड एंड फॉर दैट ज़रूरी नहीं है कि 24 घंटे हमें साथ बिताने होते हैं. नो. Hmm. 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 जितना हमने टाइम बिताया वो अच्छे से बिताना है. वी हैव टू चूज़. आजकल ज़माना चॉइस का है. Hmm. सभी के लिए. Hmm. So Hmm. we have Hmm. to choose and choose wisely. And also there is no rush. Depending on the age group of the child, you can, do things. You must Hmm. find me time for yourself. सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है पीस ऑफ माइंड. अगर हमारा माइंड पीसफुल होता है, तो हम इतने एफर्ट में हमें इतना आउटपुट मिलता है. Hmm. Hmm. पीस ऑफ माइंड के लिए टाइम बिताना बहुत ज़रूरी है. एज़ अ कपल, if you the moment you have extended your parenting circle, and then Hmm. you have other members in the community who are willing to help you, automatically you will start finding time for each other. और अपने बच्चे के लिए थोड़ी possessiveness भी छोड़नी होगी. Hmm. So you Hmm. must define like बच्चे के लिए क्या चीज़ें हैं जो आपने ही उसको अटेंड करना है, लाइक बच्चे की हेल्थ के लिए, फिजिकल हेल्थ के लिए. Hmm. आपका टाइम टेबल बनाना भी ज़रूरी है, जो हम कहीं भूल जाते हैं. एंड ब्लेंडिंग द चाइल्ड इनटू योर ओन एडल्ट लाइफ टाइम टेबल इज़ द बिगेस्ट मिस्टेक वी मेक. बिकॉज़ अगर हमने Hmm. बाउंड्रीज़ अगर हमने नहीं बनाई, तो ना हमारे पास मी टाइम होगा, ना टुगेदर टाइम होगा, ना चाइल्ड एंड मदर पेरेंट्स टाइम होगा. वो टाइम कटता ही चला जाता है क्योंकि 24 घंटे तो कभी नहीं बदलते. इट्स Hmm. ऑल इन योर माइंड. It's a reset button in the mind that we Hmm. must choose wisely what to do at what time and build a support circle in the process. And please do not use mobile as a substitute to help your child pass the time. वो सबसे बड़ी गलती करते हैं हम. सबसे ईज़ी ऑप्शन दिखता है, आई थिंक दैट्स व्हाई इट्स बस पिक्ड आजकल फर्स्ट। के बच्चे फ़ोन को बहुत जल्दी वो तो कर ही जाएँगे. उनको टेक्नोलॉजी सिखाइए मत प्लीज़. जितनी दूर रख सकते हैं, जितनी देर के लिए. आउटडोर नेचर में ज़रूर लेके जाइए. मुझे इतने ऐसा लगता है आज के बच्चों को हमें टेक्नोलॉजी सिखानी ही नहीं पड़ती है। माय डॉटर ज़रूरी वाज़ नहीं, लाइक 1 एंड अ बल्कि हाफ ईयर की अदर वे राउंड हाँ, डिप्राइव देम ऑफ टेक्नोलॉजी.
आई थिंक उनको मतलब अपने आप आता ही है सब कुछ। आई थिंक 1 एंड अ हाफ ईयर की थी वो, शी वाज़ एबल टू स्क्रॉल थ्रू द यूट्यूब लिस्ट एंड आई वाज़ लाइक शू-शू पॉटी बताना नहीं आता है बट हाँ, यूट्यूब पूरा चलाना आता स्कूल है इसको। स्कूल आ जाएँगे, पॉटी ट्रेनिंग हुई नहीं है, लेकिन टेक्नोलॉजी सारा कुछ आती है। और आई डोंट नो हाउ। एक चीज़ और, समटाइम्स टू मेनी रिसोर्सेज़ आल्सो स्पॉइल। तो हुँ, कभी-कभी एक रिसोर्स क्रंच बना लेना चाहिए, उससे बॉन्डिंग ज़्यादा अच्छी होती है। जैसे अगर हमारे घर में 7-8 टीवी हैं, मतलब हुँ, जितने कमरे उतने टीवी, सब अपने-अपने कमरे में टीवी देख रहे हैं। व्हाई हुँ, नॉट हैव ओनली 1 टीवी? उससे हुँ, एनर्जी भी बचती है। एंड हुँ, मेक से दैट कि भई वो एक ही टीवी पे फैमिली इकट्ठे प्रोग्राम देखेगी, ठीक है? हुँ, अब हुँ, उसमें क्या होगा कि ऑटोमैटिकली एक-दूसरे के साथ शेयरिंग, एक-दूसरे की चॉइस के साथ बैठना, दिन में 1 घंटा तो साथ बिताया जा सकता है। लेकिन अपने ही चॉइस का हर वक़्त प्रोग्राम देखना है, तो उसमें ना बच्चे शेयरिंग भी नहीं सीखते, केयरिंग भी नहीं सीखते हैं। अपने इंडिविजुअलिस्टिक वे में चलने से कुछ भी नहीं अचीव होता। ये बेसिक ह्यूमन वैल्यूज़ हैं, केयरिंग, शेयरिंग, हुँ, 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 लिविंग विद ईच अदर, ये तो सोशल एटिकेट्स होते हैं। तो घर से ही तो सीखते राइट, हैं बच्चे। राइट, तो इस तरह राइट, की राइट। छोटी-छोटी चीज़ें करने से यू कैन रियली क्रिएट अ डीपर बॉन्ड विद द चाइल्ड। और अगर बच्चा एक बार इमोशनली सिक्योर होगा ना, अगर आप उसको कहीं छोड़ के भी जा रहे हैं दादी-दादा या नानी-नाना के पास, देन दे डोंट क्राई, दे बिगिन टू अंडरस्टैंड। Right, right. So thank you. These were good tips, and I would definitely try and I'll reach out to you if I'll have any doubts or if I get stuck somewhere. And viewers, you are also free to share your experiences if you go ahead and try these tricks, tips, and tricks and share with us how they helped you or they didn't help you, whatever it may be. So do share it with us. One more thing that I had in my mind. बहुत सारे स्पिरिचुअल सीकर्स जो मेरे साथ कम्युनिटी में हैं, व्हेन दे आर इंटरैक्टिंग विद देयर किड्स तो उनके पास ये रहता है कि वी डोंट वांट टू बर्डन आवर किड्स या हम उनकी चॉइसेस नहीं लेना चाहते, स्पेशली दोज हु आर लाइक जिनके बच्चे बहुत बड़ी एज में है, 9th 10th में है, 11th 12th में है, दे आर लाइक कि हम उनको बोलना नहीं चाहते बार बार कि पढ़ो पढ़ो पढ़ो, इट्स टाइम, अभी नहीं पढ़ोगे तो योर करियर विल बी इम्पैक्टेड एंड बाय ऑल द सेम उसी टाइम पे दे आर वेरी कंसर्न्ड ऑल्सो कि हम बोलना भी नहीं चाहते और हमारे बोले बिना वो पढ़ भी नहीं रहे हैं। तो हाउ वी एस्टैब्लिश दैट एक कम्युनिकेशन भी हो बट वो बच्चों का दम घोटने जैसी भी ना हो। सो हाउ वी कैन गो अबाउट दैट? सी, सबसे पहले तो ये जानना बहुत ज़रूरी है कि एडोलेसेंस इज़ अ टाइम व्हेन चिल्ड्रन डोंट नो हाउ टू ड्रॉ बाउंड्रीज़। उनको रूल्स, नियम बनाना नहीं आता है, बिकॉज़ उस समय उनको अगर कोई चीज़ करना पसंद आ रहा होता है, तो वो अपने आप को नहीं रोक पाते। उनको ब्रेक नहीं लगानी आती। तो उनकी ब्रेक लगाने में पेरेंट्स को तो ज़रूर पार्टिसिपेट करना पड़ेगा। पेरेंट्स सोचते हैं कि हम बच्चों के फ्रेंड्स बन जाएँगे, लेकिन आप फ्रेंड नहीं बन सकते बच्चे के, आप फ्रेंडली पेरेंट बन सकते हैं। और पेरेंटिंग में सही और गलत की पहचान कराना इज़ पार्ट ऑफ आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी, वी कैन नॉट से। तो उनको ये बोलना नहीं है कि आप पढ़ो, 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 इस तरह से नहीं है, थोड़ा-सा हायर लेवल से बात करनी है, उनके डेली रूटीन पे बात की जाए, वीकली बैठ के उनसे देखा जाए कि उन्होंने कितना टाइम पढ़ाई पे लगा, क्या उनको उनकी लर्निंग जर्नी में पार्टिसिपेट करना ज़रूरी है, ना कि सिर्फ़ कहना कि पढ़ो, पढ़ो, पढ़ो। आप आज स्कूल गए थे, आपको क्या चीज़ अच्छी लगी, आपने नया क्या सीखा, आपको क्या डिफ़िकल्टीज़ आई, किस पॉइंट पे आपको हमारी हेल्प चाहिए? इस हुँ, तरह कन्वर्सेशंस को बदलने की ज़रूरत है। और अपने आप को हटा लेना एंड थिंकिंग दैट कि बच्चों को लगे येस, चिल्ड्रन विल फील के इंट्रूशन, हुँ। एडोलेसेंट वांट टू बी इंडिपेंडेंट, दे विल ट्राई टू पुश अवे द पेरेंट, कोशिश करेंगे वो, तो करने दीजिए उनको, लेकिन आपने पुश अवे नहीं होना है, नैग नहीं करना है, लेकिन थोड़ा-सा स्मार्टली अपने बच्चे से कनेक्शन बना के रखना है। पार्टिसिपेट करना है, नैग नहीं करना है। और उनकी लर्निंग जर्नी में पार्टिसिपेट करना बहुत ज़रूरी है। आस्किंग देम इंटेलिजेंट एंड इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस। अगर बच्चा थक गया, सपोजिंग बच्चा एग्ज़ाम से पहले बहुत ज़्यादा थक गया, टेक द चाइल्ड आउट फॉर अ वॉक। यू हैव टू कैच द चाइल्ड व्हेन द चिल्ड्रन नीड योर हेल्प एंड आर रेडी टू टॉक। उसके लिए हुँ, यू हैव टू बी अराउंड। अगेन, हुँ, हुँ, हुँ। अपने आप को कट ऑफ करके तो हम बैठ ही नहीं सकते। एक क्वेश्चन मेरे पास यहाँ पे और था। मुझे ऐसा लगता है कि मेरा और मेरे चाइल्ड का कनेक्शन है, पर मुझे समटाइम्स ऐसा लगता है कि वो कुछ फ़ील कर रही है बट शी इज़ वेंटिंग इट आउट बट शी इज़ नॉट अंडरस्टैंडिंग कि वो फ़ील क्या कर रही है और वो किस वजह से उसके पास ये फ़ीलिंग है। व्हाट काइंड ऑफ कम्युनिकेशन आई कैन एस्टेब्लिश देयर? सी,
now your child is 1.5 years old, she said. She's 6 years old now. 6 years old. So she's also, अपनी सेंस ऑफ वर्थ एंड सेंस ऑफ आइडेंटिटी वो बना रही है। उसको भी नहीं समझ में आ रहा, वाक़ई नहीं समझ में आ रहा है इमोशन, क्या इमोशन Hmm. वो फ़ील कर रही है। आप जब उसे देखोगे तो आपको पता चल जाएगा कि इस वक़्त उसको जेलसी हो रही है, या एंग्री है, या हर्ट है, या सैड है। बट बच्चों को इतनी मल्टीप्लिसिटी ऑफ इमोशंस के बारे में नहीं पता होता है। By helping her talk about it on when she's calmer, you can help her realize what she was feeling. जब इस वक़्त वो इतनी ज़्यादा पेंट अप इमोशन है, उस वक़्त तो वो नहीं बात कर पाएगी ना। Hmm. उसको इस Hmm. वक़्त Hmm. एक्सपीरियंस डोंट ट्राई टू लाइटन द झूठे प्रॉमिस करके उसकी इमोशन को कम करने की कोशिश मत कीजिए। Hmm. क्योंकि Hmm. इमोशंस हैव टू बी एक्सपीरियंस्ड। वी हैव Okay. टू गो ओवर इमोशन सप्रेशन या इमोशन को टाइड अवे करने से, जैसे कारपेट के अंदर मिट्टी डालने से मिट्टी गायब तो नहीं होगी ना। तो Right. इमोशंस को Right. बॉडी से सीप होने दीजिए। और व्हेन द चाइल्ड इज कामर, देन टॉक अबाउट इट एंड देन हेल्प द चाइल्ड अंडरस्टैंड, बेटा दिस इज व्हाट यू वर फीलिंग। फिर उनको धीरे-धीरे इस तरह से इमोशंस के बारे में बात करना बहुत ज़रूरी है, बट एट द Hmm. राइट Hmm. टाइम। आपने अभी कहा था जैसे कि एडोलेसेंस में दे डोंट नो हाउ टू क्रिएट बाउंड्रीज व्हाट इज दैट टाइम व्हेन इज दिस स्टार्ट्स हैपनिंग विद देम दैट दे डोंट नो हाउ टू क्रिएट बाउंड्रीज और हाउ टू स्टॉप बिकॉज विद माय 6 year old I am also feeling that she wants to play all the time if I ask her to sit for studying even if I'm participating in the whole 1 hour I'm sitting with her I'm engaging with her but still she's like it's like I am leaving my play I'm not playing fully you're not giving me full me time so वहां पे मुझे लगता है कि 6 years में ही उसके पास मतलब है कि let me be यू सी द डेंजर ऑफ, यहाँ तो सिर्फ प्ले ही हो रहा है ना, एडोलेसेंस तो दे एक्सप्लोर सो मेनी अदर थिंग्स, तो वहाँ Right. डेंजर ज़्यादा आ जाता है। Right, सो अब right, यहाँ तो right. प्ले में ही है कि रिचुअल्स बनाने बहुत ज़रूरी है। देयर हैज़ टू बी गैप बिटवीन प्ले टाइम एंड स्टडी टाइम। डाउन Hmm, टाइम हाइपर एक्टिव प्ले टाइम से एकदम स्टडी टाइम में जाएँगे तो बच्चे नहीं पढ़ेंगे। देयर हैज़ टू बी hmm. डाउन टाइम इन बिटवीन। जब बच्चे Okay, की एनर्जी को अप डाउन करना बहुत ज़रूरी है। okay. You know, All right. getting from one phase to the next phase, you must have something in between. So बच्चे को वो धीरे-धीरे सिग्नल सेट होना शुरू हो जाता है दिमाग में। It takes All time, right. but it All right. happens. It happens. All right. All right. So again, connection, feeling the child, seeing Yes, what she needs at what time. All yes, right. true, true. That's why it's the most difficult job. Parenting is It like it is. It takes is the whole most of you. joyful, most joyful, and yes, it is overwhelming, no doubt about it. इसमें तो कोई शक ही नहीं है। True, true, true. So, any message that you have for parents, for kids, for teachers through this platform, Vanna ji? The message that I have is that yeah, keep the connection going. Positive communication can make wonders happen. और जो सेंसिटिव कन्वर्सेशंस हैं उसको करने से कभी भी हेजिटेट मत कीजिए। कभी भी हेजिटेट मत, अपग्रेड योरसेल्फ विद करंट टाइम्स। अपग्रेड। दिस इज फॉर पेरेंट्स एंड टीचर्स एंड फॉर स्टूडेंट्स, स्टे कनेक्टेड टू योर पेरेंट्स एंड टीचर्स। वो बिल्कुल नहीं भूलना है, क्योंकि इकट्ठे रहने से बहुत कुछ हो जाता है। एवरीथिंग कैन बी सॉल्व्ड। एंड रिमेंबर Hmm. वी आर ऑल वर्किंग ताकि हर बच्चा अपनी यूनिक एबिलिटी को, अपने फुल पोटेंशियल को, अपने सोलफुल सेल्फ को लिव कर पाए, और वो कनेक्शन बनाने से ही होता है। It's like human connection is, a parent and a child connection is so beautiful. It's so beautiful. Nurture it. Very empowering, very insightful conversation, Vanna ji. I loved it. It solved so many queries of my own, and I'm going to try all of these tips and tricks, and I'm going to share it with you how it went, how it changed my parenting journey. So, thank you so much. Thank you so much. Thank you, viewers, for giving us time and support. Do share it with us, your experiences, your parenting challenges, and we shall have Vanna ji all over again, talking about your specific challenges as well. So, thank you so much. Thank you, Thank you. Vandana ji. Thank you, Thank you. viewers. Thank you, Yashika. Thank you very much. It was time for me to be unplugged. I have to say that. Thank you so much for having me over. Thank you, Yashika. Thank you. It was an opportunity. Thank you so Thank you. much. Bye-bye.